everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. I am Assistant Professor Padma Deshpande. This is SST Edupedia, and today I am going to continue my session on Productions and Total Quality Management, which is a compulsory paper of semester 4 in SYBMS. So let's continue. In my last lecture, I had told you about what is production system, and in that we had done two basic types of production system. So the first type is known as the intermittent production system, and the second kind is called as continuous production system. अब what is the meaning of intermittent? Intermittent का मतलब होता है कि the production system happens in batches or it happens in breaks. So in that we had seen the different varieties of intermittent production system and its respective advantages and disadvantages. So today in this session I am going to tell you about the continuous production system. Now what is continuous production system? Continuous production system means in which the production happens at a continuous without any stoppage. It is not at all irregular, but it is at a regular or frequent basis. Now continuous production system is, if you can take the example of the food industry, you have seen many videos wherein they have shown you the preparation of biscuits or cookies or ice creams. All these are continuous production system. Some special machineries are there which is fixed in a sequence. All the machineries are attached to each other in a sequence. There is a process going on. So in the food industry, then in fuel industry also continuous production system happens, because there are no halts or there are no irregular halts, but the production takes place at a continuous pace. So the characteristics of continuous production system are that the flow of production will be continuous, the process, everything is in a sequential order, special machineries and equipments are set up, and there is a predetermined standard. Like if you take the example of an ice cream, so when the ice cream is manufactured on mass scale, so उसमें क्या होता है, there is a preset conditions होते हैं कि milk will get boiled at this temperature, then इसके ऊपर cooling होगा, so there is a preset quality standards are set up. Then continuous production system में it is not focusing on demand, मतलब प्रोडक्शन होता है फिर उसको स्टोरेज कर दिया जाता है, उसको रिटेल आउटलेट्स में बेच दिया जाता है और वहाँ पे वो स्टोर होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड. एंड इन प्रोडक्शन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम देयर इज अ रूटिंग, कितने टाइम शेड्यूल में ये मैन्युफैक्चर होगा, इसका ये प्रोडक्ट का कौन सा सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर्म होगा, ये सब रूटिंग किया जाता है. Now there are basically three types of continuous production system: mass production system, process production system and assembly production system. So in mass production system there is a continuous flow of material. इसमें क्या है, कुछ special purpose machines होंगे and जो process जो होगा वो continuously चालू ही रहेगा. So इससे क्या होता है, यहाँ पे the work in progress will be very less, इंटरप्शंस इज लिमिटेड एंड यहाँ पे मास स्केल में प्रोडक्शन होता है, लॉट में मतलब बैचेस में प्रोडक्शन किया जाता है. से फॉर एग्जांपल मास प्रोडक्शन में इफ़ आई टेक द प्रोडक्शन ऑफ बिस्लेरी वाटर, या फिर आप मास प्रोडक्शन में कोई जूसेस का ये ले सकते हैं, कोई ये जैसे आप स्प्राइट या कोको कोला जो बेवरेजेस पीते हैं. सो यहाँ पे मास प्रोडक्शन में कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है. देन देयर इज अ प्रोसेस प्रोडक्शन. सो प्रोसेस प्रोडक्शन में एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसको स्टॉक किया जाता है. तो इस प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम में देयर आर सर्टेन स्पेशल मशीनरीज आर देयर. यू रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्किल्ड लेबर, क्योंकि मशीन्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिक या मैकेनाइज्ड होती हैं, एंड इन्वेंट्री जो होता है बहुत ही कम इन्वेंट्री लगता है एंड वेरी लेस वर्क इन प्रोग्रेस लगता है. तो प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम में अगेन देयर इज फूड इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का बताया कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है बट पूरा उसका एक प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है.
देन आता है असेंबली प्रोडक्शन सिस्टम। इन असेंबली प्रोडक्शन सिस्टम different parts are put together to manufacture a single product. Now say for example the manufacture of an automobile. So in an automobile there is a steering wheel, engine is there, so many parts are there, then tires are there, the seats are there, interior of the automobile, so many features are put. So everything is assembled and a single product is created, that is an automobile. So this is assembly production system. Now let's see the brief difference between what is intermittent production system and continuous production system. So in intermittent production system, the product is designed and manufactured according to the customer order. Now you go to a tailor and you tell him that I want to stitch this type of cloth. So the tailor, according to your wish, according to your style, according to your preference, he stitches the cloth. But in continuous production system, there is no particular customer order. The goods are manufactured and then they are distributed and then they are stocked, and as and when the demand comes, as and when the customer asks for that product is offered to him. In intermittent production system there is flexibility of process, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. वेर एज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम देर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. जैसे कि अभी फ्यूल इंडस्ट्री है, तो फ्यूल इंडस्ट्री में पेट्रोलियम पेट्रोल मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, नैफ्थल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन चालू ही रहता है. इन इंटरमिटेंट सिंस वो कस्टमर डिमांड के हिसाब से होता है एंड स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, सो यहाँ पे द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी स्मॉल, वेर एज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी very high and there is a large scale production and large scale distribution. फिर पर यूनिट कॉस्ट, अब कोई भी चीज़ सिंगल बनाने जाएंगे, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका पर यूनिट कॉस्ट हाई होने वाला है इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. वेर एज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम मास स्केल में बनाने की वजह से, होलसेल में बनाने की वजह से यूनिट जो प्राइस पर यूनिट प्राइस जो होता है वो कम होता है. देन इन इंटरमीडिएट यू विल हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. और टेलर के पास आप जाएंगे तो आपको टेलर ड्रेस बना के दे सकता है, फ्रॉक बना के दे सकता है, कुर्ता बना के दे सकता है, शर्ट्स बना के, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो बनाकर दे सकता है. वेर एज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम ओनली वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड. नाउ इन इंटरमिटेंट सिस्टम कैसे होता है, एवरी कस्टमर का यूनिक ऑर्डर होता है, तो एवरी कस्टमर का डिटेल इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है इन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. वेर एज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मशीन में फीड कर दिया तो आपका प्रोडक्शन चालू ही रहता है. जो स्टाफ रिक्वायरमेंट होती है वो ऑब्वियसली इंटरमिटेंट में थोड़ा सा टेक्निकल स्किल्स, थोड़े से एबिलिटीज़ ज़्यादा होने वाले लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी टेलर है तो टेलर को हम टेलर का काम कर सकते हैं क्या, नहीं, टेलर को उसको कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे कटिंग करना है, ये उसकी स्किल होती है. Whereas इन मास प्रोडक्शन सिस्टम या कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम ऐसी कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. हाँ, मैनेजरल स्किल्स की ज़रूरत होती है टू मैनेज, टू प्लान, टू कंट्रोल एवरीथिंग. देन जो स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इंटरमिटेंट में उसको अलग से स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है. कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर का ऑर्डर बनाया, कस्टमर को दे दिया वो ऑर्डर. वेरेज इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इसकी वजह से स्टोरेज करके रखना पड़ता है. ये प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है एंड देन इट इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. अब चेंज ऑफ लोकेशन में इंटरमिटेंट में इट इज़ ईजिली चेंजेबल अकॉर्डिंग टू, कभी कभी जैसे अभी आपको फर्नीचर बनाना है
तो फर्नीचर बनाने के लिए आइदर द कारपेंटर कैन कम टू योर प्लेस and make the furniture according to your specifications and design, or he can take the furniture to his workshop, वहाँ पे वो फर्नीचर बनाकर आपके घर पे आके छोड़ सकता है. Whereas in continuous production system चेंज इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मशीनरीज जो होती हैं दीज आर इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट इट इज़ इंस्टॉल्ड इन वन लोकेशन. एक सीक्वेंस में ये मशीनरीज प्लेस होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ये गुड्स ये जो प्रोसेस जो रहता है ये चालू रहता है. तो चेंज ऑफ लोकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड डिज़ाइन किया जाता है. तो ओनली स्पेसिफिक स्किल्स एंड मशीनरीज की ज़रूरत होती है. इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप करने पड़ते हैं, लेबरर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है. So obviously the capital investment is going to be more. Now irrespective of intermittent या फिर ये continuous production system, कौन से भी सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होती हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमको रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है, फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, वेदर प्लांट इज़ फ्लेक्सिबल, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, देन व्हाट इज़ द ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर डिलीवरी में कितना टाइम अवेलेबल है, देन अदर फैक्टर्स जैसे कि मार्केट अवेलेबिलिटी, मार्केट कितना पास में है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर कितना अवेलेबल है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर कितना अवेलेबल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Now the next concept that I am going to tell you about is product development. So product क्या होता है? Product is something which has a value. When it is sold in the market, we get a return value is fetched in the form of you. When I sell a product, I get some money. So that is the profit that I am earning on that product. So product में हमेशा market के changes बहुत होते रहते हैं. Market is very dynamic. The consumers demand is changing. पहले आप हेलो हेलो वाला सिंपल सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, जिसका बेसिक पर्पस था टू मेक कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स. बट अब क्या हो गया है, उस प्रोडक्ट में चेंजेस आ गए हैं. नाउ दैट फ़ोन हैज़ बिकम अ स्मार्टफोन, जिसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होती हैं. सो ये केस की वजह से होता है, दिस हैपन्स ड्यू टू कंटिन्यूस रिसर्च से कस्टमर की जो नीड्स हैं वो आइडेंटिफाई होके प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाए जाते हैं. सो प्रोडक्ट्स के बेसिकली कैसे होते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूस चेंजेस लाने की वजह से प्रोडक्ट की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए कभी कभी नया इनोवेशन करना पड़ता है. जैसे कि कोई अभी वेरी रिसेंटली हमने पैंडमिक का एक सिचुएशन देखा. सो पैंडमिक के सिचुएशन में सम न्यू प्रोडक्ट्स केम इनटू द मार्केट. पहले मास्क एंड सैनिटाइजर्स दे वर हार्डली यूज, बट नाउ दोज प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन हो गया और वो प्रोडक्ट्स का अभी यूज़ भी आ गया है. सो ऐसी इन्वेंशंस होती हैं. सो प्रोडक्ट जब भी नया प्रोडक्ट जो आता है, इट कैन बी ब्रॉट इन 3 ways. एक होता है इमिटेशन यानी कि मेरे कॉम्पिटिटर ने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसको देखकर वैसा ही प्रोडक्ट बनाया है, सेम टू सेम काइंड, उसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स करके या उसके प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में चेंज करके कुछ ना कुछ मैंने वैसा ही सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाया. सो इमिटेशन. समटाइम्स एडप्टेशन करना पड़ता है. इन एडप्टेशन व्हाट हैपन्स इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे अभी पहले हम एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे, बट नाउ विथ चेंज इन टाइम्स हमने क्या किया है, सिचुएशन को एडप्ट करने के लिए अब कैसे हो गया है, मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं, पीपल वांट एवरीथिंग इन वन फोन. तो इसके लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्टफोन्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस. सो एडप्टेशन यहाँ पे हुआ, मतलब जो सिचुएशंस एनवायरनमेंट में जो चेंज होती है उस हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज लेकर आना. एंड समटाइम्स अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ टू बी क्रिएटेड, इन्वेंटेड. जैसे अभी बहुत थोड़ी देर पहले मैंने आपको सैनिटाइजर्स का एग्जाम्पल दिया
कि इनिशियली वी नेवर न्यू द यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो सैनिटाइजर्स इसको इन्वेंट किया किसी ने कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये उसमें थोड़ा अल्कोहल होता है एंड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जिससे कि जो वायरसेस हैं वो मर सकते हैं। सो समबडी इन्वेंटेड दैट, फिर उस इन्वेंशन का फिर उस पर मार्केटिंग किया गया। सो न्यू प्रोडक्ट्स जो होती हैं इट कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट आइदर थ्रू इमिटेशन, एडेप्टेशन और इन्वेंशन। अब कोई भी प्रोडक्ट लाने से कंपनीज को क्या होता है, कंपनीज गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, कंपनीज गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन, they can offer more range of products to the consumers, कंपटीशन इंक्रीज होता है, अपने रिसोर्सेज को और भी इफेक्टिवली एंड ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड लॉट ऑफ कंपनीज ने क्या किया, अपने स्ट्रैटेजीज चेंज किए। अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फास्ट ट्रैक वगैरह है, फास्ट ट्रैक कंपनी ये पहले क्या करती थी, बैग्स एंड वॉचेस ये सब मैन्युफैक्चर करती थी। अब फास्ट ट्रैक ने ये इसका मार्केट देखा, जो मास्क यूज़ करते हैं उसका मार्केट देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपना रिसोर्सेज, अपना ब्रांड नेम को यूज़ करके, उनके प्लांट कैपेसिटी को यूज़ करके उन्होंने मास स्केल में मास्क बनाना चालू किया एंड देन दे स्टार्टेड मार्केटिंग दैट। सो जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लेते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज किया। इससे क्या होता है, प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्रेनर्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स को ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है एंड इमेज ऑफ द कंपनी इम्प्रूव्स बिकॉज कंपनी आके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दे यूज टू मैन्युफैक्चर ओनली टॉयलेटरीज, बट अभी दे हैव कम इनटू द FMCG सेक्टर, इसमें भी काफ़ी सारे वो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जैसे ये डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सब अभी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन उन्होंने भी वो सब चीज़ें मार्केट में लेकर आए। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रेजेंस बढ़ता है, कंपनी का गुडविल बढ़ता है, कंपनी का इमेज बढ़ता है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस सेशन। बेसिकली आज के सेशन में टुडे आई टोल्ड यू अबाउट कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू द फैक्टर्स दैट determine the selection of manufacturing process. So we'll continue with this session in the next lecture. Till then, stay connected. Bye bye.